Hello everyone, a very good evening to you all. Firstly, I am very sorry because yesterday we uploaded a video that say had no voice because of some technical glitch, some technical error. I had prepared the video yesterday only, but because of that technical glitch, because of the voice, say everything became useless. So once again, today I am preparing the same video for you, right? With the help of newspaper today. Yesterday we prepared with the help of the website. So let us guys start with the review of the Hindu newspaper that is dated August 12, 2023, Saturday. The first news is Centre seeks to overhaul British era criminal laws. That is one of the biggest news so far in the recent months, coming straight from the parliament. This news is the biggest breaking, as I told you, that is coming as far as everyone is concerned, not only those people who are into law, who are into law profession, or who are say law students or law aspirants. Not only them, it deals with everybody, and everybody has to deal with the laws. IPC, CRPC and Indian Evidence Act, all these three laws are set to be overhauled. This is the first front page news of the Hindu, and the same news on the Times of India front page is that criminal justice system, criminal justice laws set for overhaul. Government brings bills to replace IPC, CRPC, Evidence Act. And on the Indian Express, on every newspaper, because of the uniqueness and the breaking nature of the news, on every newspaper, the first news is this one only. On the Indian Express, the first headline on the front page is revamp of criminal laws. Centre brings bills to replace IPC, CRPC, Evidence Act. Amit Shah, Honorable Home Minister, has said that we will replace colonial laws with Indian spirit, with the ethos of India, and they have included corruption, terrorism, organized crime under penal laws. Earlier, these were not classified and these were not defined under IPC. Allow trial in absentia, अगर कोई नहीं आ रहा है तब भी ट्रायल होगी. Focus on crimes against women and children. माइनर चिल्ड्रन, वुमन के लिए जो अगेंस्ट में कोई क्राइम करेगा तो पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया. और भी चेंजेस किए गए हैं. कन्विक्शन जल्दी से जल्दी हो उसके लिए मेजर्स उठाए गए हैं. लिंचिंग और हेट क्राइम को, मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर करके आया है, उसको डाला गया है. अमित शाह ने कहा कि ऑल विल गेट जस्टिस इन मैक्सिमम 3 years. ये एक इन इट्स ओन नेचर इज द बिगेस्ट न्यूज I have seen in the recent months. That is IPC, CRPC and Evidence Act to be amended. Other proposals include capital punishment for mob lynching, jail for sexual intercourse on false promise of marriage, repeal of section on sedition. Right. How these all are going to be dealt? Firstly, let us try to understand the bullet points. The first bullet point is कि Indian Penal Code 1860 will now be known as भारतीय न्याय संहिता, BNS, भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा. 2023
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो 1898 का था, फिर 1973 में अमेंडमेंट होता है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 and Indian Evidence Act 1872 will be replaced by Bharatiya Saksha Bills 2023. Government says the overhaul of the British era courts will make the criminal justice system citizen friendly and everyone, even the deprived lot, will get the justice. In a landmark overhaul of the colonial era criminal laws, the Centre on Friday introduced in the Lok Sabha 3 bills and then sent it to the Parliamentary Standing Committee also to replace the IPC, CRPC and Indian Evidence Act, proposing among other things repeal of the sedition law. सेडिशन लॉ को भी रिपील कर दिया गया है, बस उसके डिक्रिमिनलाइज किया गया है और क्रिमिनलाइज उसका एक पार्ट है, दैट इज अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. अगर आप भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करेंगे तो आपके अगेंस्ट में एक्शन होगा. नेक्स्ट इज and introducing a new provision with a wider definition of the offense. Guys, let us try to understand everything in bullet points. The first is terrorism, which has been defined under the penal law for the first time, under IPC for the first time, which is now known as Bharatiya Nyay Sanhita. Also a provision for attaching property of a terrorist. This is one of the most welcome provision. आतंकवाद, क्रिमिनल के लिए पनिशमेंट था, क्रिमिनल के लिए प्रोविजन था, आतंकवादियों के लिए प्रोविजन नहीं था. तो टेररिज्म को डिफाइन किया गया है और टेररिज्म जो टेररिस्ट जो पकड़े जाएंगे, जिनके ऊपर आरोप होगा, उनके प्रॉपर्टी को अटैच भी करेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. नेक्स्ट इज हिट एंड रन केसेस to attract up to 10-year jail term and fine if accused driver flees or fails to report accident to police or magistrate. पहले क्या होता था कि हिट एंड रन करने के बाद भाग जाते थे और आसानी से बेल मिल जाता था. अभी क्या किया गया है कि हिट एंड रन के केस में विल अट्रैक्ट अप टू 10-year जेल टर्म, 10 साल जेल की सजा एंड फाइन इफ अक्यूज ड्राइवर भाग जाए वहां से. अगर जो ड्राइवर है जिसके ऊपर आरोप है, अगर वो भाग गया वहां से विदाउट रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट ईदर टू द पुलिस और टू द मैजिस्ट्रेट. नेक्स्ट वन इज स्पीडी जस्टिस. पुलिस मस्ट प्रोवाइड स्टेटस अपडेट ऑन अ केस विद इन 90 days. 90 दिन के अंदर पुलिस को पूरा प्रिपेयर कर देना है, केस को इन्वेस्टिगेट कर लेना है और स्टेटस को अपडेट कर देना है विद इन 90 days. एंड चार्जशीट्स टू बी फाइल्ड विद इन 90 days. चार्जशीट को 90 दिन में फाइल कर देना है. कोर्ट के पास ये डिस्क्रेशन है, कोर्ट के पास ये राइट होगा कि वो 90 दिन का अलग से और भी समय ग्रांट कर सकती है. दैट इज कि चार्जशीट 90 दिन के अंदर में फाइल करना है. लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा, कोर्ट को ऐसा लगेगा, तो 90 दिन का टाइम, 90 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और भी पुलिस को दिया जा सकता है. बट प्रोब मस्ट बी फिनिश्ड एट ऑल कॉस्ट विद इन 180 days. 180 दिन में हर हाल में खत्म होना चाहिए. नेक्स्ट इज आफ्टर ट्रायल जजमेंट टू बी गिवन इन 30 days. मतलब कि ट्रायल खत्म होने के बाद जजमेंट आपको 30 दिन के अंदर दे ही देना है. पहले क्या होता था, ट्रायल खत्म हो गया
और जजमेंट के लिए मतलब जज साहब सो गए, अब जजमेंट पता नहीं कब आएगा, कितने महीने लग जाएंगे। तो अभी क्या क्या किया गया है कि जजमेंट ट्रायल खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए और 7 दिन के अंदर दैट मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन। डिजिटाइजेशन भी किया गया है कि 7 दिन के अंदर उसको अपलोड कर देना है ऑनलाइन। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में भी बात नहीं की गई थी पहले। अभी ऑर्गेनाइज क्राइम टू इंक्लूड किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स अमंग अदर्स, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम में डाला गया है। और ऑर्गेनाइज क्राइम का पनिशमेंट को भी बढ़ाया गया है। इसमें किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और साइबर क्राइम्स को डाला गया है। नेक्स्ट इज ऑफेंस इन प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर आप पूजा पाठ वाली जगह पर ऑफेंस इन प्लेस ऑफ वर्शिप पे अगर आप कोई क्राइम करते हो, देन इट विल अट्रैक्ट अप टू 5 ईयर इंप्रिजनमेंट, 5 साल की सजा होगी। नेक्स्ट वन इज हेट स्पीच। हेट स्पीच, अगर आप ऐसे भाषण देते हैं जिससे कि दंगा हो जा रहा है, जिससे मतलब कि कुछ विवाद बढ़ जा रहा है, जिससे कि कुछ मुद्दा गर्मा जा रहा है और जिसके कारण से हत्याएं हो जा रही है, तो हेट स्पीच में 3 ईयर इंप्रिजनमेंट फॉर इंसल्टिंग और ट्राई टू इंसल्ट रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। हेट स्पीच में पहले डिफाइंड नहीं था, तो हेट स्पीच में भी 3 साल की सजा फॉर इंसल्टिंग और ट्राइंग टू इंसल्ट रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। नेक्स्ट वन इज पब्लिक मिसचीफ। अगर पब्लिक प्लेस पे और पब्लिक मिसचीफ अगर आप करते हैं, देन 3 ईयर इंप्रिजनमेंट फॉर मेकिंग, पब्लिशिंग और सर्कुलेटिंग स्टेटमेंट्स that are likely to cause fear or alarm to the public or with intent to incite people to commit offenses against others. Meaning thereby कि अगर पब्लिक मिसचिफ आप कमिट करते हैं तो 3 साल की सजा होगी आपको, 3 साल का इंप्रिजनमेंट है, क्योंकि आपने फॉर मेकिंग, पब्लिशिंग और सर्कुलेटिंग स्टेटमेंट्स दैट आर लाइकली टू काउज फियर और अलार्म, जो कि लोगों को भयभीत कर दे, लोगों में एक डर पैदा कर दे। अगर ऐसा इरादा आपका रहा है जिससे आप ये काम किए हैं और विद इंटेंट टू इंसाइट पीपल टू कमिट ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर्स, या फिर इससे लोग प्रवोक होकर के एक दूसरे के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट करने लगे, तो इसको पब्लिक मिसचीफ माना जाएगा और 3 ईयर इंप्रिजनमेंट इसके लिए प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट वन इज न्यू प्रोविजन हैज बीन एडेड फॉर स्नैचिंग। तो स्नैचिंग येट अगेन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्नैचिंग आप सब लोग समझते हैं कि आज के रेट में स्नैचिंग कितना ज्यादा हो रहा है। लोग चलते फिरते मोबाइल फोन छीन ले रहे हैं। कोई बाइक से जा रहा है, एकाएक बाइक रोका, बाइक में इतना पिकअप होता है, आपका मोबाइल फोन छीन के भाग गया। आपका चेन, वो लोग ओल्ड लेडी को टारगेट करते हैं, ज्यादा लेडीज को टारगेट करते हैं और चेन को स्नैच करके झपट करके भाग गए, छीन करके भाग गया। तो स्नैचिंग को भी डिफाइन किया गया और स्नैचिंग को भी पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस टू बी वन ऑफ द पनिशमेंट्स फॉर फर्स्ट टाइम पेटी ऑफेंसेस। अगर छोटे मोटे अपराध, बहुत पेटी मतलब बहुत छोटे मोटे, अगर आप करते हैं और पहली बार आपने किया है, तो आपको कम्युनिटी सर्विस एक उसका पनिशमेंट रखा गया है, वन ऑफ द पनिशमेंट। याद रखेगा, हर किसी को कम्युनिटी सर्विस ही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई अपराध पहली बार किया है और अपराध निहायती बहुत छोटा है, बहुत पेटी ऑफेंस है, तो कम्युनिटी सर्विस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पनिशमेंट। मतलब कि आपको कुछ काम करने के लिए, कुछ टास्क करने के लिए जो कि सर्विस टू द कम्युनिटी है, वो आपको करना होगा। नेक्स्ट वन इज समरी ट्रायल
फॉर केसेस एंटेलिंग लेस देन 3 years ऑफ जेल। समरी ट्रायल कराया जाएगा वैसे अपराध के लिए जिसकी सजा 3 साल से कम है। इसका ऑब्जेक्ट यह है कि ये सेशन कोर्ट के ऊपर जो भार है दैट विल रिड्यूस बाय 40%। मूव एम्ड एट रिड्यूसिंग केसेस इन सेशन कोर्ट्स बाय 40%। 40% ये सेशन कोर्ट से केस को रिड्यूस कर देगा, केस के भार को कम कर देगा। तो ये अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेलकम चेंज। समरी ट्रायल होना चाहिए क्योंकि सेशन कोर्ट पे बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है। नेक्स्ट इज कम्यूटिंग सेंटेंसेस टू स्टॉप पॉलिटिकल यूज ऑफ पनिशमेंट वेवर्स बाय गवर्नमेंट्स। बहुत बार आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकली बहुत बड़ा इंसान होता है वो गवर्नमेंट से किसी न किसी माध्यम से अपने सजा को माफ करा लेता है, वेव करा लेता है। अभी इसका ताजा उदाहरण बिहार में आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिनकी वाइफ भी पूर्व सांसद रही है लवली आनंद, और जिनके बेटे विधायक हैं अभी चेतन आनंद। अभी पूर्व सांसद आनंद मोहन को बेऊर जेल से छोड़ा गया, समय के पूर्व छोड़ दिया गया। तो उसी बात से ये बुलेट पॉइंट है, उसी बात से रिलेटेड ये बुलेट पॉइंट है। दैट इज टू स्टॉप पॉलिटिकल यूज ऑफ पनिशमेंट वेवर्स बाय गवर्नमेंट्स। डेथ सेंटेंसेस कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। गवर्नमेंट जो उनको पहले छुड़ा लेती थी उसमें चेंज लाया गया है ताकि पॉलिटिकली एफ्लुएंट लोग इसका गलत फायदा ना उठाएं, जो कि उठाते आए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति इसका नाजायज फायदा ना उठा पाए। तो डेथ सेंटेंस को अब लाइफ इंप्रिजनमेंट से ज्यादा नीचे नहीं लेकर के जाया जा सकता है। गवर्नमेंट कांट डू दिस। डेथ सेंटेंसेस कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट कैन ओनली बी पार्डन्ड ओनली विथ 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट। जो लाइफ इंप्रिजनमेंट रहेगा उसको पार्डन ऐसा नहीं कि छोड़ ही देंगे, कैन ओनली बी डन विद 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट। ये सारे पॉइंट्स अमित शाह ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में कल बोला। सेडिशन लॉज जो कि 124A में था, आपको मैंने बताया कि उसको खत्म कर दिया गया है, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। लेकिन स्टिल इफ समबडी विल बी एक्टिंग अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर कोई भी भारत के एकता अखंडता के अगेंस्ट में जाएगा तो अभी भी उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा, वो एक ऑफेंस है। राइट। अभी जो राजद्रोह का टर्म है, ऑफिशियल ने कहा कि राजद्रोह का टर्म को हटा करके देशद्रोह डाला गया है, डूइंग अवे विद द रेफरेंस टू द ब्रिटिश क्राउन। क्योंकि ब्रिटिश में राज था, ब्रिटिश राज, तो वो लोग राजद्रोह करते थे। अब उसको राजद्रोह से हटा करके देशद्रोह बनाया गया है। पहले टेररिज्म का डेफिनेशन नहीं था, अभी उसको डिफाइन किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। और कोई भी शादी, अगर लव जिहाद वाले मैटर को भी उठाया गया है कि मैरिंग अ वुमन बाय कंसीलिंग आइडेंटिटी और हैविंग इंटरकोर्स अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके, लव जिहाद में यही हुआ कि बहुत सारे लोग जो मुस्लिम हैं वो बोले, लड़की को बोला कि हम हिंदू हैं, और बाद में पता चला कि शादी हो गई, बाद में पता चला कि ये मुस्लिम है। लव जिहाद का मुद्दा यूपी में बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से छाया। लव जिहाद पे ही केरला में भी केरला स्टोरी आई। तो इस तरह के मुद्दे रहे हैं, तो इसको भी क्रिमिनलाइज किया गया है कि मैरिंग अ वुमन बाय कंसीलिंग आइडेंटिटी। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके किसी से शादी किए हैं
तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। और अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, झूठा शादी का झांसा दे करके, शादी का वादा करके आपने अगर सेक्स किया है तो यह पनिशेबल ऑफेंस है। या फिर झूठा प्रमोशन का वादा करके या फिर नौकरी देने का वादा करके अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो ये इन सारे चीजों को डिफाइन किया गया है और पहली बार डिफाइन किया गया है और इन सारे चीजों को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। नेक्स्ट इज officials said special laws like the UAPA, Unlawful Activities Prevention Act, and POCSO will continue to remain in force. That is Protection of Children from Sexual Offences Act and UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. They will continue to remain in force. स्नैचिंग मैंने बता ही दिया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 मतलब कि जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा, ऑल्सो मेक्स अ न्यू प्रोविजन ऑन स्नैचिंग अंडर सेक्शन 302। अंडर सेक्शन 302 मर्डर था, मर्डर का पहले पनिशमेंट था सेक्शन 302 में, अभी इसको हटा दिया गया, अभी इस पनिशमेंट को हटा दिया गया है, राइट। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मर्डर को हटा दिया गया और स्नैचिंग को डाल दिया गया। इट सेज दैट whoever commits snatching shall be punished with imprisonment of up to 3 years and shall also be liable to fine। अगर कोई स्नैचिंग करेगा तो उसको 3 साल तक की सजा मिल सकती है and shall also be liable to fine। और हमारे होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने क्या क्या बोला है इसको मैं आपको बोल करके सुनाता हूं। दैट आई कैन अश्योर द हाउस दैट दिस बिल्स विल ट्रांसफॉर्म आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। द एम विल नॉट बी टू पनिश, इट विल बी टू प्रोवाइड जस्टिस। पनिशमेंट विल बी गिवन टू क्रिएट अ सेंटिमेंट ऑफ स्टॉपिंग क्राइम। Shah said while noting that the laws made by the Britishers were full of signs of slavery aimed at punishing those opposed to their rule। अमित शाह ने कहा कि पहले जो कानून ब्रिटिश लोगों ने बनाया था वो इस तरह का कानून था जिसमें कि गुलामी को प्रमुखता से इस तरह से बनाया गया था कि गुलाम लोग हमेशा गुलाम रहे। उसमें गुलामी की पहचान, गुलामी का सिंबॉलिक रेफरेंस था और ये इसलिए किया गया था ताकि जो भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ में आवाज उठाएगा उसको सजा दी जाएगी। और उन्होंने बोला कि ये जो तीनों बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में, ये तीनों हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। और अभी जो हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है ये इसका एम पनिश करने का नहीं है, इसका एम इट इज टू प्रोवाइड जस्टिस, न्याय देने का है, न्याय प्रदान करने का है। और पनिशमेंट विल बी गिवन टू क्रिएट अ सेंटिमेंट ऑफ स्टॉपिंग द क्राइम। Amit Shah said the changes were done to provide speedy justice and create a legal system that keeps contemporary needs and aspirations of the people। स्पीडी जस्टिस देने की कोशिश की है जो कि आज के समकालीन परिस्थितियों को देख करके बनाया गया है। Everyone will get justice in a maximum of 3 years once the new laws are passed। हर किसी को न्याय मिलेगा मैक्सिमम 3 साल के अंदर, एक बार ये कानून पास हो जाए तो। और पास होना ही है क्योंकि सारे लोग सपोर्ट करेंगे, आराम से पास हो जाएगा। आप मान करके चलिए कि ये तीनों लॉ जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तीनों बिल जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये तीनों पास होंगे और सारे चेंजेस को आपको पढ़ना है।
ठीक है, सारे बदलाव को पढ़ना है। कल से मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिसमें कि तरह तरह के लोग मीम बना रहे हैं कि अमित शाह खड़े हैं और मीम डाला जा रहा है कि मोटा भाई बोल रहे हैं लोगों को कि लॉ वालों, तुम लोग का सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया है, देख लेना एक बार। राइट, बहुत सारे लोग आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को रेस्ट इन पीस करके माला पहना रहे हैं। ठीक है, उसका तिलक चंदन कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिए हैं। बहुत सारे सारे लोगों ने जो ऑर्डर किया था ऑनलाइन इन सारे बुक्स के लिए, बेयर एक्ट्स के लिए, उन लोगों ने रोक दिया, उसको बोला भैया हमें अब ये किताब नहीं चाहिए। राइट, टेररिज्म को डिफाइन तो किया ही गया, इसके अलावा इट इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग, जैसा कि मैंने बताया, सेक्सुअल असॉल्ट्स ऑन माइनर्स, मैक्सिमम 20 ईयर imprisonment for all types of gang rape, and community service as one of the punishment for first time petty offenses। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इसके कुछ इसके जो मेजर सैलिएंट फीचर्स हैं उसको मैं आपको बताता हूं। राइट, सुनिएगा, मैं मोबाइल से थोड़ा वेबसाइट देख करके आपको बताता हूं। ओल्ड आईपीसी में 511 सेक्शन थे, अभी जो न्यू आईपीसी हमारा बना है उसमें 356 सेक्शंस हैं, 356 सेक्शंस हैं। ओल्ड सीआरपीसी में 484 सेक्शंस थे और नए वाले सीआरपीसी में 533 सेक्शंस हैं। ओल्ड सीआरपीसी में 484, नए वाले सीआरपीसी में 533। ओल्ड एविडेंस एक्ट में 167 एंड नए एविडेंस एक्ट में 170 सेक्शंस। ठीक है, ये सारे चेंजेस किए गए हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो चेंजेस हुए हैं, इनफैक्ट आप देखिए तो आईपीसी हमारा इतना पुराना हो चुका था कि 163 साल, आप समझते हो 163 साल पहले जो चीजें थी वो आज नहीं है। 163 साल पहले जो परिस्थितियां थी देश की, जो जरूरतें थी देश की, वो आज बिल्कुल बदल गई है। तो समय के हिसाब से कानून का चेंज करना बहुत जरूरी था। आप सोचो, आतंकवादी के बारे में कुछ बात ही नहीं थी, स्नैचिंग के बारे में कोई बात ही नहीं थी, गैंगरेप को का ज्यादा पनिशमेंट नहीं था। एक एक क्रिमिनल के केस में मतलब 10-10 साल केस चल रहा है, 15 साल केस चल रहा है, 20 साल केस चल रहा है। तो इन सबको स्पीडी जस्टिस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था। एक लॉ में कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो ये एक वेलकम चेंज हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स लॉ स्टूडेंट्स को सबको भार पड़ेगा, हम लोगों को भी भार पड़ेगा, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे लोगों को भार पड़ेगा। क्योंकि जो चीज अभी हम लोग 302 पढ़ते आए हैं मर्डर का, अब 302 में मर्डर नहीं है, अब मर्डर चेंज हो गया। 300 में सॉरी 302 में मर्डर का पनिशमेंट है, चेंज हो गया। 300 में मर्डर था, 299 में कल्पेबल होमिसाइड था, सब चेंज हो गया। ठीक है, I am just trying to discuss everything so that it comes as a savior for you, that if it happens that you get questions, if you happen to get questions from these amended laws, from these changes, then you are able to answer it, right?
यही सारी चीजें। मैं एक बार द हिंदू को देख लेता हूं कि और भी कुछ छूट तो नहीं रहा है। नहीं नहीं, लगभग हमने सारा चीज कवर कर लिया है। फिर एक है दूसरा चीज है ये, जीएसटी को लेकर के है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज और रेसिंग पर 28% जीएसटी के लिए प्रावधान किया गया है। पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे क्लियर्ड अमेंडमेंट्स टू द जीएसटी लॉज टू फैसिलिटेट द लेवी ऑफ 28% जीएसटी on the face value of all bets made in casinos, horse racing, and online gaming. The tax is likely to be rolled out from October 1 and reviewed after 6 months. 1 अक्टूबर से ये सारे रोल आउट हो जाएंगे और 6 महीने के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। 28% का जीएसटी। नेक्स्ट न्यूज इज कर्नाटका मॉडल फॉर कांग्रेस टिकट्स इन राजस्थान पॉल। राइट, कर्नाटका मॉडल इसलिए ये लोग राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाला है और कर्नाटक में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है, तो उसी मॉडल के बेसिस पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं राजस्थान में, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन। इलेक्शन कमीशन रीनेम्स सम सीट्स इन आसाम। आसाम में इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन किया, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया, एंड द इलेक्शन कमीशन हैज स्ट्रक टू द डिलिमिटेशन ड्राफ्ट फॉर आसाम bearing the renaming of a Lok Sabha constituency and 90 assembly seats in its final order on Friday. आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन में चेंज किया जाता है। जैसे कि अभी पटना है, तो पटना में पहले एक सीट होती थी लोकसभा की, आज के डेट में 2-2 सीट है। पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा है। दिल्ली में लोकसभा की बहुत सीटें हैं, मुंबई में लोकसभा की बहुत सीटें। तो पॉपुलेशन वाइज जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सीट को बाइफरकेट करना पड़ता है और भी सीटों का डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज पीएम प्राइम मिनिस्टर क्रैकिंग जोक्स व्हेन मणिपुर इज बर्निंग, सेड बाय राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि women and children are dying there and people are being murdered, women are being molested, raped, and the Prime Minister of India sitting in the middle of the parliament shamelessly laughing, हंस रहे हैं। जब इतनी सारी घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, बच्चे बूढ़े और औरत सबको मारा जा रहा है। दिस इज नॉट अबाउट राहुल गांधी, दिस इज नॉट अबाउट द कांग्रेस पार्टी, दिस इज नॉट अबाउट द अपोजिशन पार्टीज, दिस इज अबाउट इंडिया, राहुल गांधी का कहना है। टीवी चैनल एडिटर हेल्ड ओवर पोस्ट ऑन नूह वायलेंस। सुदर्शन न्यूज के सीनियर एडिटर was arrested on Friday for a baseless and misleading post on Twitter, that is now called X, to the recent communal clashes in Haryana's Nuh district, the police said. गुड़गांव के मतलब गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर काला रामचंद्रन said an FIR had been registered against Mukesh Kumar, the channel's resident editor, on August 8 in connection with this post. देखो, अगर कोई बेसलेस न्यूज ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे चला दे रहा है और जिसे क्लैश हो जाए, वायलेंस हो जाए, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। मर्डर चार्जेस फाइल्ड इन जादवपुर स्टूडेंट डेथ केस, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईडी मेक्स फ्रेश अरेस्ट इन झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग केस। झारखंड में चल रहा है, हेमंत सोरेन को भी समन किया गया। डेमोलिशन ड्राइव इन नूह, हरियाणा गवर्नमेंट dismisses ethnic cleansing charge. Shinde Sena to take action against 5 MPs of Uddhav faction for violating whip. The Eknath Shinde led Shiv Sena on Friday
said it will take legal action against 5 MPs of the rival Uddhav Thackeray led Shiv Sena for violating the whip issued to all Sena MPs to vote against the no confidence motion brought by the opposition against the Narendra Modi government. इनका अलग ही चल रहा है, महाराष्ट्र में खेला खत्म ही नहीं हो रहा है जब से ये शुरुआत हुआ है. इनकी अंदर की लड़ाई पर्सनल लेवल पे चली गई है. Next is monsoon session comes to an end amid opposition boycott. मॉनसून सेशन खत्म हो गया और खत्म होने के साथ साथ अपोजिशन का बॉयकॉट चलता ही रहा. शुरू से बॉयकॉट के साथ ही शुरू हुआ और बॉयकॉट के साथ ही खत्म हुआ ऑन द लास्ट डे ऑफ द मॉनसून सेशन ऑन फ्राइडे. राज्यसभा फेल्स टू होल्ड डिबेट ऑन मणिपुर. आप्स राघव चड्ढा सस्पेंडेड. राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा से. राघव चड्ढा वही है जो कि परिणीता चोपड़ा से उनकी शादी होने वाली है, अभी उनकी फियांसी है, एक्ट्रेस. नेक्स्ट इज पीएम एंडेड कांग्रेस कल्चर ऑफ बॉम्ब्स एंड बंस इन नॉर्थ ईस्ट. अनुराग ठाकुर ने कहा. जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग मैंने बता ही दिया 28%. नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एडवाइजेस ट्रांसफर ऑफ 24 हाई कोर्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यह एडवाइज किया है कि 24 हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफर करना है. बहुत सारे जजेस had asked for a reconsideration of the decision. The Supreme Court Collegium has recommended the transfer of 24 judges from high courts across the country despite requests from several of them to reconsider its decision. While some judges urged the Collegium to rethink their transfers, others sought a shift to high courts in neighboring states. A few gave the apex court body the names of cities they did not mind moving into. तरह तरह के चॉइसेस दिए गए. कुछ जजेस ने मना किया कि मेरा यहां से यहां मत ट्रांसफर करो, रिकंसिडर करो. कुछ जजेस ने बोला कि मुझे बगल के पड़ोसी राज्य में भेज दो. कुछ जजेस ने बोला कि इन सारे जगहों पे मुझे भेज सकते हो, लेकिन जहां भेजे हो वहां मत भेजो. One of the judges wrote to the collegium about his younger son's final board examination due in Feb 24. एक हाई कोर्ट जज ने यह भी रीजन दिया कि हमारे बेटे का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट फरवरी 2024 में, तो हमारा ट्रांसफर नहीं किया जाए. But the collegium has declined to retract any of the 24 proposed transfers. One of them, Justice C. Sumanta, a Telangana High Court judge who was proposed to be shifted to Gujarat, made a request to the collegium to move her to either Andhra Pradesh or Karnataka. The collegium suggested her for Karnataka. एक लेडी जज है जिन्होंने जो गुजरात में तेलंगाना हाई कोर्ट की जज है, जस्टिस सी सुमंता, उन्होंने बोला कि इनका हुआ था गुजरात के लिए टू बी शिफ्टेड टू गुजरात, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे आंध्र प्रदेश भेज दो या फिर कर्नाटका भेज दो. द कॉलेजियम सजेस्टेड हर फॉर कर्नाटका. कॉलेजियम ने उनको कर्नाटका के लिए बोला. सिमिलरली जस्टिस एम सुधीर कुमार, ऑल्सो फ्रॉम तेलंगाना, वॉज चोजन फॉर ट्रांसफर टू कैलकाटा हाई कोर्ट, but the judge urged the collegium to move him to the Andhra Pradesh, Karnataka और the Madras High Courts. जनरली क्या है, साउथ वाले
इधर नहीं आना चाहते हैं, वो नॉर्थ की तरफ नहीं मूव करना चाहते हैं। तो कॉलेजियम ने इनको मद्रास भेजा है। इसी तरह से जस्टिस नरेंद्र जी हु वाज पिक्ड फॉर ट्रांसफर फ्रॉम कर्नाटका टू उड़ीसा, इन्होंने कॉलेजियम को बोला कि हमको कर्नाटका में ही रखिए फॉर 3 or 4 months और इन द ऑल्टरनेटिव शिफ्ट हिम टू तेलंगाना, मद्रास और आंध्र प्रदेश। ही हैज नाउ बीन प्रपोज्ड फॉर आंध्र प्रदेश, राइट। इसी तरह से बहुत सारे का न्यूज है, मैं कितने का पढ़ के बताऊंगा, 24 लोग हैं। मैंने इसलिए इस पे इतना डिटेल से बोला क्योंकि ये आपके सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम का न्यूज है और कॉलेजियम का मुद्दा कुछ समय से विवादों में है। नेक्स्ट इज नो रिलीफ फॉर केजरीवाल, संजय सिंह इन प्राइम मिनिस्टर्स डिग्री केस। In a setback to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his party colleague Sanjay Singh, the Gujarat High Court refused to stay proceedings in a criminal defamation complaint filed by Gujarat University in the case pertaining to PM Narendra Modi's academic degree. गुजरात के हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट में गुजरात के यूनिवर्सिटी ने फाइल किया। डीडी दैट इज जो हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, डीडी ऑल सेट फॉर अ मेकओवर विथ फ्रेश प्रोग्राम्स, रीजनल एंड ओटीटी फोकस। देखो यार, अब सबको बदलना पड़ेगा क्योंकि सब पूरे विश्व में बदलाव की बयार चल रही है। तो डीडी ने बोला है कि हम फ्रेश प्रोग्राम लाएंगे और रीजनल लैंग्वेज में भी लाएंगे और ओटीटी, जैसे ओटीटी आपका चल रहा है ना, प्राइम वीडियो, G5 है, नेटफ्लिक्स है, तो इस तरह से ये लोग भी ओटीटी के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट इज ज्ञानवापी केस, दैट इज प्लेंटिफ 6 कर्व्स ऑन एंट्री। ज्ञानवापी का मुद्दा बनारस में एएसआई का साइंटिफिक सर्वे चल रहा है, ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है। दैट इज वन ऑफ द प्लेंटिफ्स इन द ज्ञानवापी वर्शिप राइट्स सूट, राखी सिंह on Friday filed a fresh application in the court of Varanasi district judge seeking sealing certain areas inside the Gyanvapi mosque premises where symbols pertaining to Hindu religion allegedly exist. राखी सिंह जो वन ऑफ द प्लेंटिफ है इस मामले में, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के पास एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाया है और इन्होंने बोला है, उस एप्लीकेशन में इन्होंने बताया है कि जहां पर हिंदू भगवान की मूर्तियां हैं या फिर जो चिन्ह हैं, जो सिंबल्स हैं, वहां पर किसी को आने नहीं दिया जाए और उस एरिया को सील कर दिया जाए। The application, which also sought the court to regulate, restrict the number of people who offer namaz at the disputed site, has been moved with an aim to protect these symbols. सही है, देखो ये सही तरीके से होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि वहां पे पहले मंदिर ही शुरू से ऐतिहासिक रूप से रहा है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने भी बोला है कि अगर मुस्लिम पक्ष को खुद से ही आना चाहिए और बोलना चाहिए कि यहां पे मंदिर था और मंदिर बना ले, और नहीं तो इस पर विवाद बढ़ेगा। नेक्स्ट इज 4 हेल्ड गिल्टी इन लखीमपुर खीरी रेप मर्डर केस। लखीमपुर खीरी में जो रेप और मर्डर हुआ था उसमें 4 लोगों को गिल्टी माना गया है। पॉक्सो कोर्ट ने, देखो हिंदू ने ही गलत लिख रखा, पॉस्को लिख दिया है। पॉक्सो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कोर्ट इन लखीमपुर खीरी on Friday convicted 4 accused in the case related to the rape and murder of 2 minor Dalit sisters, और जिनकी उम्र सिर्फ 15 और 17 साल हुई थी। रेप मर्डर यार, दिस एवरी डे इन इंडिया दिस थिंग्स आर हैपनिंग, और इसके लिए पनिशमेंट बढ़ाया गया है। तो दैट्स अ वेलकम न्यूज। जो हमारा नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है, आईपीसी में जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, इनके ऊपर पनिशमेंट बढ़ाया गया, जो कि एक वेलकम मूव है।
तमिलनाडु टू मूव सुप्रीम कोर्ट एज कर्नाटका रिफ्यूजेस टू शेयर वाटर। इनका शुरू से विवाद चल रहा है कावेरी नदी वाला, कावेरी वाटर को लेकर के। तो तमिलनाडु ने बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कर्नाटका ने वाटर शेयर करने से मना कर दिया है। नेक्स्ट इज सेंटर डिफेंस यूज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन G20 लोगो एज चाइना ऑब्जेक्ट्स। चाइना को यार हर चीज पे प्रॉब्लम है, चाइना को हर चीज पे प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने चाइना में मतलब क्या ही बताओ, मतलब चाइना में अगर वो अपने माँ से भी यही पूछता होगा, माँ हम आप ही के बेटा है ना, हम आपके बेटा नहीं कहलाएंगे, हम उनके बेटा कहलाएंगे। हर चीज पे ऑब्जेक्शन इनको करना है। और कोई न्यूज नहीं है स्पोर्ट्स से या फिर वर्ल्ड न्यूज से? IS अटैक ऑन सीरिया आर्मी बस किल्स एटलीस्ट 26 सोल्जर्स, सेज मॉनिटर। इनका अलग ही चलता रहता है। बट एनीवेज, these were the biggest news which I discussed with you, and as I told you कि आपके सारे एग्जाम्स में, आप कोई भी एग्जाम में अपीयर कर रहे होंगे, कल जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरहॉल और ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस करने की बात की गई है, इनसे क्वेश्चंस रहेंगे, आप लिख करके ले लो। इससे बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। सो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और इस पे और भी जो भी डिटेल्स आएंगे मैं उस पे वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप दैट यू ऑल लव द वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द हिंदू एनालिसिस, for the hawk eye view, for the review of the Hindu newspaper in the minutest detail on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy, Chanakya CLAT classes and Georgian IAS. Thank you everyone for watching me. Jai Hind, Jai Sri Ram.